गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज जा रही है? बताओगे जरा। यस मैम। ओके, थैंक यू। लेट्स वेट फॉर 2 or 3 minutes. Let's join other student also. Okay, after that we will start. Before start of the chapter, all of you are required to open your book, geography book, as it is a joint class of 9E and 9G. So let's start with geography, second chapter of geography. In class 9G, whether it was started or not? नो मैम। ओके, तो 9E में भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो दोनों जगह एक तरह से हो जाएगा। ठीक है, सारे बच्चे जो तुम लोग अपना रखा है पार्टिसिपेंट्स नेम, उसमें क्लास और सेक्शन भी होना चाहिए, एडमिशन नंबर भी बेटा। ठीक है, एंड म्यूट योरसेल्फ प्लीज। लेकिन ऐसे समझो कि एक अभिनव, क्या पढ़ रहे थे बेटा? अभिनव कुमार, उसी के यहाँ से आवाज आ रही थी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। स्टूडेंट्स इंटर कर रहे हैं, सो वेट फॉर 1 or 2 minutes, देन वी विल स्टार्ट। ओके, अच्छा अभिनव, मान्या तुम्हारा भाई है अभिनव? हाँ, तो घर में कुछ पढ़ रहा था ना? क्या पढ़ रहा था? पढ़ता है आजकल? गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जिस किसी को भी पूछना होगा वो अनम्यूट करके पूछेंगे, और जब तक हम पढ़ाते रहेंगे बाकी टाइम में आप लोग अपना माइक को म्यूट रखेंगे। ठीक है? ओके मैम।
You are free to ask any questions, लेकिन you must remember, अगर कुछ अनाप शनाप होगा, all are in recording mode. ठीक है, सारा कुछ रिकॉर्डिंग मोड में है और सर्विलेंस में ही है, तो आप लोग केयरफुल रहेंगे, जानते ही हैं आप लोग, बाकी कुछ बताने का ज्यादा जरूरत नहीं है. क्लास 8 में ऑलरेडी सबको पता है, जो हमसे 8F में पढ़ चुके हैं. So now let's start. So today we will start new chapter of geography, that is chapter 2. It is not started in class 9E as well as 9G. So that's why we will start this chapter, okay? The name of the chapter is Physical Features of India. First of all, I want to know about what is the meaning of physical features of India. Let's start with topic. Anyone? कोई बताएगा? What do you mean by physical features of India? And why do we need to study about physical features of India? What do you mean by physical features of India? And why do we need to study it? In class 9, we will study about geography of India. We need to know about India's landscape, its physiographic division, its climate, its vegetation, its human resource and population. So in first chapter, we have already studied about India's location in the world map, in globe, and its latitudinal and longitudinal extension. And in lesson 1, we have also discussed about, if anyone asks how to classify any country, any region in globe, you all are well versed, well known about classifying any region in globe. How you can classify any region in globe? Anyone from 9E? I have already discussed in class. By longitudinal and latitudinal extent. Very good, Shraddha. Very good. Clapping for Shraddha. With the help of latitude and longitude. अगर हमको लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन पता है, तो ग्लोब में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करके इजिली आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पूरे वर्ल्ड का ग्लोब के किस पार्ट में है, नदर्न हेमिस्फीयर में है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न में है, या साउथ वेस्टर्न में है, या साउथ ईस्टर्न में है. With the help of latitude and longitude, we can classify any country on globe. So this is already, we have studied, all these points are already discussed in lesson 1. Significance of latitude and longitude, significance of India's coastline. So anyone from 9G, as it has already been discussed in 9E. So anyone from 9G, can you tell me any one significance of latitude for any country? What is the significance or importance of latitude? Anyone from 9G? नाइन जी क्लास से कोई बताओ सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिट्यूड. वन सिग्निफिकेंस, एटलीस्ट वन सिग्निफिकेंस. जैसा कि अभी हम बताए, तो कम से कम एक बात तो बोल ही सकते हैं कि लैटिट्यूड इज हेल्पफुल इन क्लासिफाइंग, टू नो द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस.
बोल सकते हैं ना? यस मैम। हाँ, कि अभी हम बताए कि इट हेल्प्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हेल्प्स इन क्लासिफाइंग एनी कंट्री विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एग्जैक्ट लोकेशन कैन बी आइडेंटिफाइड। तो लैटिट्यूड भी उसमें आ गया, तो लैटिट्यूड का एक सिग्निफिकेंस तो ये हो ही गया। और क्या हो गया हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, कोई बताओ 9G से? व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया? आज हम प्रीवियस चैप्टर का थोड़ा सा एक बार रिव्यू लेंगे, क्योंकि उसी पर बेस्ड हमारा आगे का चैप्टर है। यस, एनीवन टेल मी? मैम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। वेरी गुड पीयूष कुमार। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 36 डिग्री 7 मिनट, 37 डिग्री क्या है? 6 मिनट नॉर्थ। हाँ, yes, 37 डिग्री 37 degree 6 minute north. This is latitudinal extension. Do you know about the heat zone of the earth? Have you studied it in class 6, 7 or in any class? Heat zone of the earth, I think it is in class 6 syllabus. यस मैम, Heat zone. इन So 6। earth is divided into how many heat zone? और अगर इसमें कुछ समझना होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे आपको, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड रखेंगे और उसमें ड्रॉ करके बता देंगे, या कंबाइंड क्लास लेकर भी कभी बता सकते हैं, या आएंगे अरेंजमेंट में तो भी बता सकते हैं। हीट जोन ऑफ द अर्थ? मैम 3। 3 हीट जोन, पीयूष कुमार। ओके, गुड। नेम देम प्लीज, नेम 3 हीट मैम जोन। टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर पीयूष कुमार। Torrid zone, temperate zone and frigid zone. Other than Piyush, anyone can you tell me the latitude of torrid zone? 0 डिग्री से कितना डिग्री तक टॉरिड जोन माना जाता है इन जनरल? मैम बताएं। और कोई एक मिनट और किसी को देखते हैं, फिर पीयूष से बात करेंगे, या फिर कोई 9E का भी कोई स्टूडेंट बता सकता है? Ma'am, maybe 23 degree and half. ओके, वेरी गुड। तुम इतना जान सकते हो, इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द रीजन विच लाइज इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। हाफ डिग्री साउथ। हाँ, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, या तुम कह सकते हो 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ, दैट ऑल एरियाज कम्स अंडर टॉरिड जोन। क्यों? बिकॉज in globe it lies at the central position. The insolation of the sun or solar heat directly reach to this part of the earth. टॉरिड जोन में सन रेस का जो है सोलर इंसोलेशन में सोलर हीट का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। Hence the temperature remains high, means in major part of the year in within torrid zone the temperature remains high, यानी कि ज्यादा वर्ष का ज्यादा महीने में इक्वेटोरियल एरिया में देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि सालों भर टेम्परेचर ज्यादा होता है, सेंटर ऑफ द अर्थ है इक्वेटर के पास। लेकिन विद इन टॉरिड जोन जहां भी सन का पोजीशन का डायरेक्ट रेज आता है, ये विद इन टॉरिड जोन, यहाँ पे 6, 7, 8 महीने तक टेम्परेचर ज्यादा होता है। 3 ही 4 मंथ ऐसे होते हैं जब टेम्परेचर कम होता है और स्लैंटिंग रेज होता है, या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास। ये पार्ट ऑफ द अर्थ जो है दैट रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर इंसोलेशन और सोलर हीट, हेंस इट इज कॉल्ड टॉरिड जोन। ओके, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ टेम्परेट जोन? कितना डिग्री लैटिट्यूड से कितना डिग्री लैटिट्यूड का एरिया टेम्परेट जोन में आता है? हम 0 degree to 66 degree and half. 0 डिग्री, अब कैसे? अब जब 0 डिग्री से 23.5 तक हमारा Sorry, आ गया। 23 degree and half. 23 half and 66 and half. Yes, very good. 23.5 degree north to 66.5 degree north, and in the same way 23.5 degree south to Half degree 66.5 south to degree 66 and half degree south. yes, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से वो एंटार्क्टिक सर्किल जो है वहां तक हमारा क्या होता है, टेम्परेट जोन है। एंड एबव 66.5 डिग्री नॉर्थ टू नॉर्थ पोल 90 डिग्री, एंड बिलो 66.5 डिग्री साउथ टू साउथ पोल, दैट कम्स अंडर फ्रीजिड जोन। वो किस में आता है, क्योंकि वहां पे जो फ्रीजिड जोन का एरिया है वहां पे वर्ष के ज्यादा महीने यानी कि 8-9 महीने तक बर्फ से ढका रहता है, और 2-3-4 ही मंथ ऐसे होते हैं जब वहां पे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है। अदरवाइज वहां टेम्परेचर इन जनरल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। सो दैट पोर्शन और मेजर पार्ट ऑफ दैट पोर्शन इज कवर्ड बाय स्नो एंड हेंस इट केम टू बी नोन एज फ्रीजिड जोन। अब हम लोग जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन और उसका सिग्निफिकेंस हम पूछ रहे थे, एक तो सिग्निफिकेंस है कि इट हेल्प्स इन प्लेसिफाइंग एनी रीजन इन वर्ल्ड मैप और इन ग्लोब, और दूसरा सिग्निफिकेंस है with the help of latitudinal extension we come to know about the heat zone of that particular country। अब जैसे कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हम लोग पढ़े 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ का पोर्शन कौन से जोन में आएगा, किस हीट जोन में आएगा बताओ। इंडिया का ये पोर्शन जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से टेम्परेट जोन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ का पोर्शन जो है लैटिट्यूड का, वो किस जोन में आएगा, टेम्परेट जोन में आएगा। हाँ जल्दी बताओ किस में आएगा। अगर 23.5 तक टेम्परेट जोन में आएगा तो 23.5 से 37 डिग्री 6 मिनट तक कौन सा जोन में आएगा, टॉरिड जोन। नहीं क्लियर आ रहा है आवाज स्वधा। हाँ बोलो बोलो, सोचने वाली बात है, तुम लोग सबको पता है। एक बार जरा देख के देखो, अभी हम लोग हीट जोन पढ़े, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीजिड जोन। 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ टॉरिड जोन। हमारा कंट्री का एक्सटेंशन है 8 डिग्री से, 0 डिग्री से 8 डिग्री ऊपर भी टॉरिड जोन मैम टॉरिड जोन टॉरिड जोन ही होगा। तो टॉरिड जोन ही होगा ना, तो तुम लोग नॉर्थ और साउथ सोच के क्या कर रहा है, ऊपर वाले को कह रहा है टॉरिड जोन, नीचे वाले को कह रहा है टेम्परेट जोन। बाद में क्लाइमेट पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि हीट जोन को या कहीं का टेम्परेचर कंडीशन को मॉडिफाई करते हैं। बट इनिशियली विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड we easily come to know about the heat zone of that country, whether that country comes under torrid zone or temperate zone or in both zone or frigid zone. So it also helps in knowing about the temperature or climatic condition of any region. तो लैटिट्यूड का किसकी आवाज आ रही है, थोड़ा उसको म्यूट करो बेटा। तो लैटिट्यूड का एक सिग्निफिकेंस हो गया, हेल्प्स इन प्लेसिफाइंग एनी कंट्री ऑन वर्ल्ड मैप और ऑन ग्लोब। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या हो गया, इट हेल्प्स टू नो अबाउट find heat zones। हाँ, इट हेल्प्स टू नो और टू फाइंड आउट द हीट जोन ऑफ दैट कंट्री, कि इन विच हीट जोन दैट कंट्रीज लाई। ठीक है, तो 2 सिग्निफिकेंस तो अब लिख लोगे ना। यस मैम। और लॉन्गिट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। एक तो कॉमन हो गया, क्लेसिफाई करने में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। और लॉन्गिट्यूड का सिग्निफिकेंस कितना बढ़िया से तो फर्स्ट
चैप्टर में पढ़े हो तुम लोग? क्लू दें? कोई बताएगा? शिवराज, शिवराज का नाम भी हम, ये पहले 8F में थे शिवराज। शिवराज को सुनाई पड़ रहा है बेटा? आवाज नहीं। म्यूट करो सब लोग अपना माइक, नहीं तो हम म्यूट ऑल कर देंगे तो पूछेगा कैसे? यस मैम। शिवराज पहले 8F में था। नो मैम। हाँ तो शिवराज को सुनाई पड़ा। लॉन्गिट्यूड का और क्या है? What is the significance of longitude? It tells us the time zone of different regions around the world. Yes, it helps to know about the time zone Times. or time. And we have already discussed in lesson 1, you have already studied about the vast longitudinal extension of India. Anyone, can you tell me about the longitudinal extension of India? कोई बताएगा? What is the longitudinal extension of India? 68 degree 7 east and 97 degree 25 east. हाँ, मिनट बोलते हैं बेटा। 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है ना? डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट, ठीक है? और दोनों के बीच में डिग्री में डिफरेंस कितना आया? हर्ष कुमार, डू यू वांट टू आस्क एनीवन एनीथिंग? कुछ पूछना चाह रहे हो? उसका हाथ रेज किया हुआ दिख रहा था। नो मैम, आंसर देने के लिए। हाँ बोलो बोलो। मैम आंसर तो मिली आपको। मिल गया, अब नहीं बोलना है। अच्छा तुम ये बताओ, तुमसे हर्ष कुमार से क्वेश्चन है। हम लोग पढ़े 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 97 degree 25 minute east. ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है? ये लॉन्गिट्यूड में टोटल एक्सटेंशन कितना है? कितने डिग्री का एक्सटेंशन है? अप्रॉक्स 30 डिग्री। About 30 degree. And 30 degree, you whether it was have you studied about 1 degree consist of 4 minutes? यस मैम। Okay, तो 30 डिग्री में कितना को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? Ma'am, 120 minutes. 120 minutes. 120 मिनट्स। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। 120 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2 आवर्स। 2 आवर्स। 2 hours. 2 hours. तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है उससे इंडिया में 2 घंटे का अंतर दिखता है। ईस्टर्न मोस्ट Time difference होता है। लॉन्गिट्यूड एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड भी ईस्ट ही में है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का? रण ऑफ कच्छ कह सकते हो, गुजरात का रण ऑफ कच्छ से Yes, ma'am. अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो इन दोनों के बीच में 2 घंटे का टाइम में अंतर पाया जाता है, ठीक है? तो व्हाट मेजर्स हैज बीन टेकन टू रिड्यूस द कंफ्यूजन ऑफ टाइम? एनीवन टेल मी? मैम ISM ISM स्टैंडर्ड मेरिडियन। You adopt IS. The standard meridian of India. Standard meridian. What is the longitude of standard meridian? 82 degree 30 minutes. Ma'am, 82 degree 30 हाँ। minute east. 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट 30 minutes लॉन्गिट्यूड। east. हाँ, इसको माना गया। Why 82 degree 30 minute is taken as standard meridian for India? Why 82 degree 30 minute? Why it is not? India in 2 equal parts. Very good, very good. It divides India into 2 equal Two parts. equal parts. वेस्टर्न और ईस्टर्न में तो ये डिविजिबल है, ठीक है? And what is the need of taking 82 degree 30 minute east as a standard meridian? To maintain local time.
In Yes, whole maintain country. local maintain times. or To to maintain local time. reduce the confusion of time, ये है purpose. And Yes, ma'am. by taking 82 degree 30 minute east longitude, and the time recorded, the local time recorded at this meridian is taken as standard time for the whole country. यही ना होता है? ये Yes, ma'am. पोर्शन इंडिया का बीचों बीच में है, और यहाँ का लोकल टाइम जो रिकॉर्ड किया जाता है उसी को स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, और उसी को आधार मानकर पूरे इंडिया के टाइम कैलकुलेशन को मेंटेन किया जाता है। रेडियो टेलीविजन से जो हम लोग टाइम मिलाते हैं या जो भी, वो आपका इसी स्टैंडर्ड मेरिडियन का लोकल टाइम होता है, जिसको स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं, so that we can reduce the confusion of time which is created due to vast longitudinal extension. So longitude is also helpful in specifying any place. Longitude is also helpful in providing accurate time for any place. यह है दो चीज, longitude का significance हो गया, latitude का significance हो गया. Can you tell me which name the imaginary line that passes from almost India's middle? North South extension में इंडिया का मिडिल में Tropic of Cancer. Tropic Yes, of Cancer. Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. Very good, very good. Can you tell me what is the significance of Tropic of Cancer? What is the significance of Tropic of Cancer? कोई बताएगा? Ma'am, first it divided India into two equal part, northern part and southern part. Okay, very good. Almost two equal. Completely two equal नहीं, बल्कि almost two equal part. Almost. हाँ, इंडिया को डिवाइड करता है. ये है आपका नदर्न पोर्शन एंड सदर्न पोर्शन. सेकंड सिग्निफिकेंस, अभी हम लोग हीट जोन के बारे में पढ़े थे ना? Tropic of Cancer also divides India into two heat zone, torrid Zones. zone and temperate zone. तो ये दो हो Temperate गया zone. significance of Tropic of Cancer. अब हम लोग एक फिगर देखे थे आपका लेसन 1 में, दिखाते हैं तुम लोगों को बुक में. एक ये फिगर याद होगा, मैप, ये मैप Yes, में ma'am. डिस्टेंस इन किलोमीटर Yes, दिखा, ma'am. बुक में निकाले हो ना? मैप में क्या दे रहा है? डिस्टेंस इन किलोमीटर. नॉर्थ Kilometer. साउथ में जो लाइन खींचा हुआ है वहां पे डिस्टेंस लिखा हुआ है किलोमीटर का. बताओ क्या लिखा हुआ है, कितना किलोमीटर? 3214. 3,214 kilometers. यस. ईस्ट वेस्ट में एक लाइन रन कर रहा है. 2933. 2,933 kilometers. दोनों में ठीक है. अब नॉर्थ साउथ का डिग्री में डिफरेंस बताओ क्या है? 8 डिग्री से 37 डिग्री क्या आता है? मिनट वगैरह को लोगे तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा? 29 degree. 29 डिग्री कुछ मिनट आएगा. 29 degree. हाँ, 29 डिग्री कुछ मिनट आएगा. चलो अब 68 डिग्री और 97 डिग्री का डिफरेंस डिग्री में निकालो, क्या आएगा? 29 degree. Approx Ma'am, 29 degree. 29 degree. वहां भी 29 डिग्री. नॉर्थ 30 साउथ degree एक्सटेंशन. Approx 30 degree. कौन बोल रहे हैं? तो हम लोग देखें कि नॉर्थ साउथ का डिग्री में एक्सटेंशन भी अबाउट 29 डिग्री या 30 मिनट, एंड ईस्ट वेस्ट का डिग्री में एक्सटेंशन भी अबाउट 29 डिग्री या 30 मिनट. दोनों में तो करीब करीब बराबर है डिग्री में डिफरेंस. Yes, ma'am. Yes, ma'am, equal है. Yes, ma'am. तो फिर कोई बताएगा, 9G से क्वेश्चन है मेरा ये, कोई बताएगा कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन किलोमीटर में 29 डिग्री 2933 किलोमीटर क्यों है, और नॉर्थ साउथ 3214 किलोमीटर क्यों है? 3214 किलोमीटर नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन किलोमीटर में क्यों है, और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन 2933 क्यों है? कोई बताएगा? 9G से क्वेश्चन है. 9E में भी पूछेंगे क्योंकि ये पढ़ाए हैं, देखते हैं इनको याद है या नहीं है.
ये क्वेश्चन मेरा 9G से है। यस हर्ष कुमार बोलो। 9E से है हर्ष कुमार। अच्छा बोलो, तुम ही बोलो। मैम जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं वैसे वैसे एक दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच का जो गैप है वो 110 डिग्री बढ़ते जाता, 110 किलोमीटर बढ़ते जाता है, इसीलिए। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया बेटा। हर्ष थोड़ा सा गड़बड़ किया। यस मैम। कोई और बताओ। तुम पहुंच रहे हो वही जैसे हम बताए हैं, लेकिन कोई और बताओ। 9G से कोई बताएगा? पढ़ा है इसको कोई? क्वेश्चन एग्जाम में आता है इससे। अब बल्कि आपका बुक में भी एक लाइन है दिया हुआ, हम आपको बताते हैं। बुक में भी एक जगह एक लाइन में लिखा हुआ है। पेज नंबर 4 निकालोगे। 4 नहीं, हाँ यस, पेज नंबर 2। बुक है सबके पास? खोले हो? यस मैम। Yes, ma'am. खोले हो तो पेज नंबर 2 देखो। पेज नंबर 2 खोल लिया? यस मैम। Yes, ma'am. फर्स्ट कॉलम का तुम देखो, ये थर्ड पैराग्राफ। फर्स्ट कॉलम का थर्ड पैराग्राफ। Look at the figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appear to be smaller than north-south extents. ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दिया हुआ भी है, समझे? और ये क्वेश्चन आता भी है। OII से कौन ज्वाइन कर रहा है भाई? उसको तो हम एडमिट नहीं करेंगे। जो OII किसी का नाम है क्या? यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, why east west extent appear to be smaller than north south extent। क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ, why east west extent appear to be smaller than north south extent despite the fact that in degree the extension in degree is almost equal in north south and east west extension। degree in degree the east west extension is same as the north south extent is, that is 30 degree, but in kilometer it is different। do you have any idea why it is so? why east west extent is appear to be smaller than north south extent? चलो कोई और बताओ। हर्ष बता रहा था, थोड़ा ठीक भी था, लेकिन और बताओ कोई। Ma'am, due to difference in the variation of degree of latitude and वेरी longitude. गुड, वेरी गुड। हु इज दिस? आर नाम से हमको Ma'am, चेहरा दिखाओ अपना जरा, हम देखना चाहते हैं कौन है। बहुत अच्छा, वेरी गुड आंसर। आपको ज्यादा दिमाग उसमें लगाना नहीं है। क्या बोलना है? द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ लैटिट्यूड रिमेन्स सेम। मतलब कि 1 डिग्री लैटिट्यूड का वैल्यू 111 किलोमीटर होता है। हर्ष बताया था ना शुरू में, लेकिन वो दूसरा तरह से बताया था। द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ लैटिट्यूड रिमेन्स सेम, but the value of degree of longitude is different at different places। अलग अलग एरिया। मैम आप क्लास में बताई थी। हाँ क्लास में बताए थे। हर्ष थोड़ा सा कंफ्यूज किया। हम जानते हैं कि लॉन्गिट्यूड जो है वो, अगर इक्वेटर के पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है तो उसका वैल्यू ज्यादा होता है। अगर पोलर एरिया में है तो वहां पे डिस्टेंस कम हो जाता है। एक फिगर बना के बताए थे ग्लोब का। इक्वेटर पे जैसे एक 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किए, ठीक है ना, बीच में प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री। 90 डिग्री ड्रॉ किए तो 90 डिग्री के पास, नॉर्थ पोल के पास वो कॉन्साइड करेगा, सट जाएगा। और इक्वेटर के पास कैसा आएगा? इतना गैप हो जाएगा प्राइम मेरिडियन से। हाँ इस तरीके से, ठीक है। इक्वेटर के पास उसका गैप बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, और पोल के पास उसका लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस घटता है, ठीक है। जबकि लैटिट्यूड तो सारा पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, देयर डिस्टेंस रिमेन्स द सेम।
The value of degree of latitude remains the same, but the value of degree of longitude is different at different places. It is maximum near equator and minimum near pole. That's why the north-south extent appears to be larger than the east-west extent. यहाँ पे जो भी है वो वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वजह से भी है। बात समझ में आई है सबको? और जिसको नहीं समझ में आया है वो फिर पूछो। यू आर फ्री टू आस्क। बात समझ में आ गया सबको या नहीं आया? टेल मी। नहीं समझ में आया? मान्या को अभी नहीं समझ में आया है। एक मिनट, मान्या का सेक्शन अलग है। रुको, हम तुरंत बता रहे हैं तुमको, ड्रॉ करके। यहाँ पे तुरंत ड्रॉ करके बताते हैं मान्या। चलो, अब ये बुक लिए हैं, बुक में एक ग्लोब बनाते हैं। तुम लोग को दिख रहा है पूरा बुक? दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, चलो, ma'am. बुक में एक ग्लोब ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ग्लोब ड्रॉ कर लिए और ये हो गया बीचों बीच से काट दिए। ये क्या है? ये लाइन क्या है? ये लाइन क्या शो कर रहा है? दिख रहा है ये लाइन सबको? Equator. इक्वेटर। और Equator. ये लाइन दिख रहा है सबको? Prime meridian. Prime meridian. ठीक है, ये नॉर्थ पोल भी हो गया और ये साउथ पोल। ये क्या है? नॉर्थ पोल। ये हो गया साउथ पोल। अब देखो, एक मिनट, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है ये, ठीक है? इसको सीधा करेंगे तो बराबर होगा। ये लैटिट्यूड का वैल्यू, 1 डिग्री का वैल्यू 111 किलोमीटर, ये लैटिट्यूड का वैल्यू, ठीक है ना? अब आ जाओ लॉन्गिट्यूड। यहां से ये बीचों बीच में 90 डिग्री का लॉन्गिट्यूड खींचते हैं। देख रहे हो? नॉर्थ पोल के पास देखो, ध्यान से देखो, दिख रहा है सबको? ये दिख रहा है सबको? मैम हल्का ऊपर कीजिए। अब दिख रहा है? Yes, ma'am. मैम थोड़ा सा- अब देखो, ये लॉन्गिट्यूड का लाइन है, ये वाला लॉन्गिट्यूड का लाइन है, ये लॉन्गिट्यूड का लाइन है, देख रहे हो? देखो, ये इक्वेटर के पास लॉन्गिट्यूड Yes, देखो, ma'am. इक्वेटर के पास डिस्टेंस ज्यादा है। दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये लॉन्गिट्यूड है, ये नॉर्थ साउथ में जो रन किए हैं लॉन्गिट्यूड है। और इक्वेटर से लॉन्गिट्यूड का 90 डिग्री का डिफरेंस देखो, इक्वेटर से ये लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस देखो। अब पोल एरिया में, पोल में देखो, प्राइम मेरिडियन से इसका डिस्टेंस, पोलर एरिया में, नीचे साउथ पोल में, पोल में जाके कौन साइड कर रहा है? तो यहाँ का डिस्टेंस, लुक हियर, यहाँ का डिस्टेंस और इक्वेटर का डिस्टेंस दोनों एक है? नो मैम। नहीं No, ना? ma'am. मतलब कि लॉन्गिट्यूड का वैल्यू